prayers. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamaham Dadati Shapadantikam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swaminiti Namine. नमस्ते स्वारसती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुं दिनकारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति का महत्व क्या है कि आज के दिन सूर्य दक्षिण गोलार्ध से मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एंटर करते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो सूर्य जब दक्षिण से उत्तर के ओर प्रस्थान करते हैं तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और इस जो समय है ये बहुत आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही उत्कृष्ट है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार एक योगी अगर एक पवित्र समय में अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो मेरे धाम में वापस आ जाते हैं। तो और उसको वर्णन करते हुए भगवान उत्तरायण के बारे में बताते हैं कि अगर कोई उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। और फिर आगे बोलते हैं भगवान, लेकिन मेरे भक्त जो होते हैं, my devotees are beyond these conditions. So my devotees who have completely surrendered to me can come back to my abode, leaving their body anytime. So because devotees are fully surrendered to Krishna, and therefore whenever they leave their body, they are qualified to going back to Godhead. But still on the time basis, this Makar Sankranti or Uttarayan time is very, very powerful, very, very auspicious. Actually, we are very fortunate that we come together in a satsang to hear about the Supreme Lord in this auspicious occasion. And by Krishna's mercy, all of you are very, very fortunate that many times, like your MMC or your Sunday classes is falling on the auspicious day. So you have to take that advantage. Yes. So Bhishmadev, I am just going to speak that. Bhishmadev was waiting for this particular time. Actually, Bhishmadev is one of the Bashus. There is Ashtabashu, the 8 rishis, and Bhishmadev, one of the rishis. So, because of some curse, Bhishmadev took birth in this earthly planet, and he appeared as a son of Ganga Devi. So, Bhishmadev was waiting for this particular time, Uttarayan, to quit his body. So when he was quitting his body, he was aspiring that Lord Krishna will come at the time of his death. So actually, after the battlefield of Kurukshetra, the Kurukshetra was over and Bhishmadev was 48 days on the bed of arrows. 48 दिन भीष्मदेव सरसैया में सोए हुए थे इस उत्तरायण की अपेक्षा करने के लिए। और
और इससे भी ज्यादा महत्व है कि भीष्मदेव उस समय भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे, और फिर भगवान प्रस्थान करना चाहते थे द्वारका में। तो हमारे सीनियर बैच के क्लासेस में 2-3 महीना पहले हम लोग भीष्मदेव के डिपर्चर के बारे में हम लोग सेक्शन चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद वी आर नाउ डिस्कसिंग द हाउ लॉर्ड कृष्णा एंटर into Dwarka, what happened and how the devotees of Dwarka they welcome the supreme personality of Godhead. So so Krishna was supposed to leave for Dwarka, but all of a sudden what happened? Yudhishthir Maharaj became bewildered. So he was not ready to become a king. So he was telling that because of me all this fight and all this क्या बोलते envy, all these things took place. So many people died because of me. I want to become king. So Krishna was trying to make him understand that this war did not took place because of you. This war actually supposed to take place because the Kauravas was on the side of adharma, and they were not ready to do the minimum justice, for all of you. So therefore it was important to establish dharma and annihilate adharma. So but still Yudhishthir Maharaj, he was not ready to understand. So then Lord Krishna, the Supreme Lord who gave Bhagavad Gita, who convinced Arjuna, and still people after 5,000 years back, after 5,000 years, people are getting all the answers from Bhagavad Gita. तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए। तो तब भगवान सोच रहे थे कि सबसे अच्छा है कि अगर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास लेके चलते हैं, और भीष्म पितामह महाजन है, भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है, भीष्म पितामह के पास हर प्रकार के ज्ञान है और उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के क्या बोलते बड़े पापा है। तो युधिष्ठिर महाराज के बाद, युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के बाद जरूर समझेंगे। तो इस प्रकार भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेके गए। दूसरे ओर, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, या आचार्य लोग कहते हैं कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव को दर्शन देना चाहते थे, क्योंकि भीष्मदेव युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के एक महान भक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भीष्मदेव को उनके मृत्यु के समय दर्शन देना चाहते थे, और इसीलिए भगवान कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए। अरे युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, युधिष्ठिर महाराज के जैसे महान व्यक्ति, धर्म के जो विज्ञान है, धर्म के जो अलग अलग विचार है, उनसे अच्छा कौन समझ सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो युद्ध करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे, पहले से ही तैयार नहीं थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से जब हर प्रकार के प्रयास व्यर्थ हो गए, तब युधिष्ठिर महाराज लोग राजी हुए युद्ध करने के लिए। तो युधिष्ठिर और पांडवों को तो युद्ध करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं था, और राज्य भोग करने की भी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन कृष्ण की इच्छा है धर्म की स्थापना हो, कृष्ण की इच्छा है कि प्रजा लोग का कल्याण हो, वो लोग भगवान के धाम में चले जाए। इसलिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, लोगों की कल्याण के लिए वो लोग युद्ध करने के लिए राजी हुए थे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को तो युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं था, और धर्म के हर प्रकार के ज्ञान उनके पास है, तो वो कैसे भ्रमित हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए भ्रमित होना संभव नहीं है। लेकिन क्यों भ्रमित हो गए? क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर भीष्मदेव को दर्शन देना था उनके मृत्यु के अंतिम समय में। तो देखिए भगवान उनके भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। जब एक भक्त अपने जीवन के अंतिम समय में अपेक्षा कर रहे हैं भगवान की, और भगवान अपने द्वारका यात्रा को कैंसिल करके, अपना ट्रेन टिकट को कैंसिल करके भगवान आ गए हैं युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए। और केवल वही नहीं, युधिष्ठिर महाराज के सारे जो प्रश्न हैं, सारे प्रश्न के उत्तर भीष्मदेव के द्वारा पूरे जगतवासियों को देने के लिए भगवान रुक गए। तो इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है। इस दुनिया में हम लोग अलग अलग लोगों को प्रेम करते हैं। जो जिनको प्रेम करते हैं वो भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और जो प्रेम करता है वो भी डिससेटिस्फाइड रहता है। हर समय में और रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप है वो मैटेरियल कंडीशन के ऊपर खड़ा है। माई एंजॉयमेंट, his enjoyment, her enjoyment, his enjoyment. So this part is enjoyment, that part is enjoyment. So both want to enjoy, and therefore relationship mein there is no satisfaction. So only satisfaction comes when we want to serve. By service without any expectation, we can be happy. So in devotional service, the devotee want to serve the Supreme Lord, and the Supreme Lord want to serve, want to care, want to reciprocate with his devotees. तो ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान के भक्त वात्सल्य है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण केवल अंतिम समय में भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए नहीं आए थे। इस उत्तरायण के समय, आज के दिन, भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव के महिमा को बढ़ाने के लिए आए थे। भीष्मदेव के पास ज्ञान का भंडार था। 12 महाजन, शास्त्रों के 12 महाजनों में भीष्मदेव एक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वया सखीर्वयम। ते 12 महाजनों में भीष्मदेव एक जन है। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान जब वितरण कर रहे तो पूरे विश्व से बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग आ गए। व्यासदेव, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, असित, देवल, पर्वत मुनि, जितने भी बड़े बड़े मुनि ऋषि उनके शिष्यों के साथ आ गए। हजार हजार मुनि ऋषि लोग आ गए। भीष्मदेव बड़े एक क्या बोलते नक्षत्र, बड़े एक महाजन, ये अपना शरीर छोड़ रहे हैं, इस पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर रहे हैं। तो सब लोग आ गए हैं उनके अंतिम समय में, उनके अंतिम सेमिनार अटेंड करने के लिए। तो जैसे इस दुनिया में कोई बड़े लोग होते, जब वो शरीर छोड़ते सब लोग जाके उनसे मुलाकात करने के प्रयास करते हैं, या सब लोग उनके सेरेमनी अटेंड करते हैं। तो भीष्मदेव वाज ए ग्रेट नक्षत्र, आसमान से आए हैं। तो सब लोग आ गए हैं भीष्मदेव से श्रवण करने के लिए। तो तब भीष्मदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो भीष्मदेव बहुत सारा पूरा एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर हैं। तो मैं 1-2 श्लोक ही बताऊंगा आप लोगों को। दरवाजा बंद कर रखो। तो भीष्मदेव ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, अहो कष्टम अहो अन्नायम जज्जूहम धर्मनंदना जीवितुम नार्हतम क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रय। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? एवरीबॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। यस सर। हाँ, ऋतिक, रूपम, प्रीतम, शुभम, मोहित, अनुराग, आदित्य। यस यस।
So please hear. So aho kashtam aho अन्नायम जज्जूहम धर्म नंदना। भीष्मदेव ने कहा कि हाय, साक्षात धर्म के पुत्र होने के बाद भी, साक्षात धर्म के पुत्र होने के बाद भी अहो कष्टम, क्या कष्ट आपने सहन किया, किन प्रकार के अन्याय आपको सहन करना पड़ा। तो लेकिन फिर भी आप लोग जीवित हैं, फिर भी आप लोग जीवित हैं। जीवितम नारहतम क्लिष्टम, फिर भी आप लोग जीवित हैं क्योंकि आपने विप्र धर्म अच्युता आश्रय, क्योंकि आपने विप्र मतलब आपने वैष्णव या ब्राह्मणों का आश्रय लिए थे, जैसे नारद मुनि हो गए हो, या विदुर हो गए हो, या और भी बड़े बड़े मुनि ऋषि इनके आश्रय लिए थे। और फिर विप्र धर्म, धर्म का आश्रय लिए थे। तो विप्र धर्म, धर्म का आश्रय लिए थे, वैष्णवों को, महाजनों का, साधुओं का आश्रय लिए थे। और अच्युत, अच्युत कौन है, कौन है अच्युता? कृष्ण, कृष्ण। हाँ, तो गोविंद दामोदर माधवेति अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो कृष्ण अच्युत है जिनका पतन नहीं होता है कभी, जो हमेशा विजयी होते हैं। तो क्योंकि आपने अच्युत केशव का आश्रय लिया है, क्योंकि आपने धर्म का आश्रय लिया है, क्योंकि आपने वैष्णव की, साधुओं की आश्रय लिया है, इसलिए आप लोग अभी भी जीवित है और अभी भी आप लोग विजयी है। तो भीष्मदेव देखिए ऑपोजिट पार्टी में युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब पांडव लोग युद्ध करने के लिए आए थे तो भीष्म पितामह आशीर्वाद दिए थे। क्या आशीर्वाद? विजयी भव। भीष्मदेव को पता था कि युधिष्ठिर महाराज लोग जीतने वाले हैं, और भीष्मदेव को किसी परिस्थितियों के कारण, किसी प्रारब्ध के कर्म के कारण उनको युद्ध करना पड़ा पांडवों के खिलाफ। तो भीष्मदेव एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं कि अगर हम लोग भगवान की आश्रय में रहेंगे, साधुओं की आश्रय में रहेंगे और धर्म के आश्रय में रहेंगे, धर्म मतलब गीता, इनका निर्देशों का पालन करेंगे, तो जीवन में या भौतिक जगत में अलग अलग कठिन परिस्थितियां, अन्याय का सामना करने के बाद भी हम लोग विजयी हो सकते हैं, जिस प्रकार पांडव लोग विजयी हुए थे। तो इस दुनिया में अलग अलग परिस्थितियां हैं, भौतिक जगत उसी प्रकार बनाया गया और हमारे पूर्व जीवन का कर्म फल है। हम लोग, हमारा मन और इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अलग अलग दुख आने वाले हैं, क्योंकि हमारा कर्म फल उसी प्रकार है और हम लोग भगवान के शरणागत नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवान के शरणागत होंगे तो इसको ओवरकम कर सकते हैं। और उसके बाद भीष्मदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तावेशो मनोजस्मिन्, भक्तावेशो मनोजस्मिन् वाचा जन्नाम कीर्तयन्, वाचा जन्नाम कीर्तनम्, त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं योगी, मुच्यन्ते काम कर्मभिः, मुच्यन्ते काम कर्मभिः। तो भीष्म पितामह कहते हैं भक्तावेशो मनोजस्मिन्, जो व्यक्ति भक्ति के भाव के साथ, भक्ति के साथ जस्मिन वाचा जन नाम कीर्तन, वाचा मतलब अपने वाक्य, अपने स्पीच और अपने टांग के द्वारा, अपने जीवा के द्वारा, जन नाम कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। भक्ता विश्व मनोजस्मिन वाचा जन नाम कीर्तन, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, उच्चारण करते हैं। त्यजन कलेवरम योगी, जो ऐसे योगी या ऐसे भक्त
हाँ, जब शरीर छोड़ते हैं, मुच्चन्ते काम कर्म भी, हाँ, भगवान उनके सारे काम कर्म भी और सारे कर्म के जो फल है मुच्चन्ते, सब मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान के नाम के महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। अपने शरीर जब छोड़ रहे हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज पांडवों को उपदेश दे रहे हैं और उसके बाद भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान की नाम का आश्रय लेंगे, हाँ, भीष्म देव जैसे महाजन इधर क्या बोलते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, भीष्मदेव जैसे महाजन आचार्य लोग इधर रिकमेंड कर रहे हैं, তিনি তাদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের बंधन থেকে मुक्त करें। तो जो व्यक्ति भगवान की आश्रय लेते हैं, भगवान उनको सारे कर्म के बंधन से मुक्त करते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए जो आप हरि नाम कर रहे हैं, इसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें बहुत फायदा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं हमारे जीवन में। इंस्टेड ऑफ चैंटिंग मूवी सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग और सम ब्लास्फेमी, क्रिटिसिज्म और सम रबिश वर्ड्स, एज स्टूडेंट्स, यूथ्स, कॉलेज बॉयज, they always use some slang language. So instead of using slang language and create or increasing more reaction of karma, we should chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The more you chant Hare Krishna, more your spiritual account increases. More you chant Hare Krishna, more your reaction of karma destroyed. More you chant Hare Krishna, more you advance in spiritual platform. And 90% progress in our spiritual life comes from the holy name of the Lord. So Bhishma Dev, on his last days, he's chanting the holy name of the Lord. So therefore, chanting is the ultimate solution. This is Brahmastra. No other astra, no other solution can help that much which the holy name can do, because the holy name is non-different from Krishna. And therefore, we should chant as more as possible. That's what Srila Prabhupada says. If you chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, in one lifetime, you can go back to Godhead. Instead of entering into the animal body or other species and suffer in this world of death, we should take this opportunity to chant the holy name and go back to Godhead. So today is very auspicious day. I request everybody to chant 16 rounds. And you'll get lot of piety, lot of punya, lot of bhakti for Krishna. So Bhishma Dev, he was preparing his life to going back to Godhead. Because Bhishma Dev knows that I was cursed, and because of that curse, I was fall in this earthly planet. And therefore, he was preparing that the right moment, and he was aspiring that Krishna will come and give his darshan on his final time, and seeing Krishna, he will leave the body. So the same thing happened because he was preparing his life for Krishna, and Krishna also preparing to offer his love to Bhishma. Next verse, Bhishma is speaking. So please repeat after me. Very important verse. Sadeva Devo Bhagavan Pratikshataṃ. Sadeva Deva Bhagavan Pratikshataṃ. Kale Baram Jabat Idam Hinam Maham. Kale Baram Jadavam Hinam. Prasannahasa Arunalochanallasad. Mukham Bhuja Dhana Patha Chaturbhuja. Mukham Bhuja Dhana Patha Chaturbhuja. तो इधर के भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय प्रभु, जो सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था अपने अंतिम समय में भगवान के लिए, और सदेवो देवो जो सारे देवता की देवता है परमेश्वर भगवान, वो
कले बरम जाबद, मेरे शरीर छोड़ने के समय प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लास। प्रसन्न हासा मतलब प्रसन्न और हंसी प्रदान करते हुए अरुण लोचन, जिनके जिनकी आंखें सूर्य के जैसा है, और चतुर्भुजम, अपने चतुर्भुजाओं के साथ भगवान भीष्मदेव भगवान को नारायण के रूप में पूजा करते थे, क्योंकि कृष्ण स्वयं नारायण है। तो इसलिए भगवान भीष्मदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कृपा करके भगवान प्रतीक्षा करे। तो आपने प्रसन्न मुखम वदन के साथ, मुखमंडल के साथ आप चतुर्भुज रूप में, मुखाम भुजो ध्यान पथ चतुर्भुज, मेरे ध्यान के मार्ग में, मेरे दृष्टि के मार्ग में भगवान अपेक्षा करे। तो इस प्रकार भीष्मदेव जब भगवान आए तो पांडवों के साथ तो भगवान उपदेश दिए, और फिर युधिष्ठिर भगवान से निवेदन करने लगे, और भगवान उनके अंतिम समय में भगवान भीष्मदेव को दर्शन दिए, और भगवान भीष्मदेव भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मृत्यु के समय जिधर एक व्यक्ति को भगवान को चिंता करना बहुत ही कठिन है, पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार के पीड़ा, पूरे शरीर तीरों के द्वारा छेदा हुआ है, लेकिन फिर भी he was able to chant, able to remember, able to focus on the Supreme Lord, because he had practiced Krishna consciousness throughout his life, because he was devotee of the Lord. तो जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो शरीर के अलग अलग प्रकार के कष्ट, या इस भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के जो कष्ट है, वो एक भक्त को रोक नहीं सकता भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवान भी उनको मदद करते हैं, और भक्त भी शरीर के परे चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त लोगों को पता है हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इसलिए भगवान के भक्त लोग बहुत ही निष्ठा के साथ भगवान की आश्रय लेते हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग अलग अलग प्रकार से कष्ट पा रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से, कोरोना वायरस। So people are suffering, but Bhishma here, you see, his whole body was pierced by thousands of arrows, and he was on the deathbed, he was supposed to leave the body, but he was glorifying Krishna. He is giving instruction to Pandavas and so many millions of munis and rishis. That shows how devotees are advanced. Devotees are not on the bodily platform. By practicing Krishna consciousness, we can transcend bodily platform. We can transcend all the contamination, impurities, lust, greed, anger, envy. So till these things are there in our heart, it will be very difficult to remember Krishna, because Krishna is completely pure, and we have to be also pure. So human life is an opportunity to purify our heart and re-establish our relationship with the Supreme Lord and go back to Godhead. Human life is not for sense gratification like animals. That will entangle us, impure us more and more. Human life is to purify our heart, and by chanting Hare Krishna, by hearing Krishna Katha, by worshipping the Supreme Lord, associating with the devotees, we can purify our life. So today is most auspicious day of Makar Sankranti. So let us take this process of chanting, process of hearing, process of devotional service, and association of devotees very seriously. So Bhishmadev is Mahajan, he is recommending this process, and whole Bhagavatam Vedas is recommending this process. So therefore, instead of wasting time in so many useless things, let us practice Krishna consciousness seriously along with your study life. So there is a lot of time apart from our study life. So study is a duty for body, but what we are doing for soul. So therefore, if we don't take up this Krishna consciousness, then we are uselessly wasting our human birth. So therefore, my humble request to you, please take this opportunity seriously. So devotees are coming in your life by your great fortune. It may not be according to your qualification,
but by Krishna's grace, somehow or other, devotees are coming in your life, and these great devotees like Bhishma Dev and Pandavas, Narad Muni, they are coming in your life through their teachings. So therefore, please take this opportunity very seriously. Chant the holy name. Today is also auspicious day of Lord Chaitanya's taking sannyas. Chaitanya Mahaprabhu took sannyas in this auspicious day in Katwa to distribute this knowledge of Bhagavad Gita to everyone. Also, Ganga Devi appear, and then this Bhagirath took Gangaji on Sagar Deep, where his previous descendant were cursed and they all burned into the ashes. So today is the day, on the day of Makar Sankranti, they were all delivered. They got back their life again. So therefore it's very, very auspicious day. So please chant the holy name and please come for this Mayapur Yatra. So as we have spoken before you, so we have VTW and we have STW. So VTW is for Vedic training workshop, where we give spiritual training. And then STW is for software training workshop. So software training workshop will take place in Kharagpur, because college is closed, so we are not able to do right now. Normally we have VTW, STW, means one after another. So we have VTW in Mayapur, then STW in Kharagpur. So so this VTW we are doing now. Those who have not received your certificate of Spurti, so did not came yet, so we'll be giving them in coming camp. And those who have not yet come because of some reasons, we will send you your certificate online. But to get Utkarsha certificate, you have to attend the camp. So, and also STW. So those who will attend VTW, for them only STW will be open. So, so this is the system and norms. So therefore I request you, please register for the camp, because last time all of you giving many reasons, but therefore we have organized one more camp, and many boys also wanted to have camp again, and therefore many boys registered 2 times. So you have already 7-8 boys already registered. So, and many more 10-12 boys are going to register again. So therefore, please take this opportunity. This is my humble request, and take advantage of this life. Mayapur is most beautiful place. Unless you come there, you will not be able to understand. And those who have attended, those who have come, they knows how Mayapur is most beautiful. So it's an educational, spiritual tour where so many things are there, so many programs and prasad, music, dance, classes, association, and visiting different places are there. So please take this opportunity. So I have to leave because I have to attend our temple class. So I request Akshay to chant 2 rounds with all the boys. Yes. Okay, Prabhuji. Okay. Yeah. So everybody. Yes, sir. Yes, sir. So please take this opportunity of this auspicious occasion of Bhishma Dev. Remember this auspicious day. Perform something, some worship to the Lord. Offer lamp, offer flower to the Lord, and chant 2 rounds with the devotees now. And please try to chant 16 rounds today. So you'll get lot of credit. And I request you, please take this opportunity of Mayapur camp. And we have opportunity to ship to voice. You can take advantage of voice also. So you can ship to voice also. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your wonderful session. Hari Bol. Thank you very much.